ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کے مقاصد اور اس پروگرام کی غرض و غایت آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا معین انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ پروگرام ہمارا کیوں منعقد کیا جاتا ہے. ہمارے یہ چند احباب ہیں جن کی یہ فکر ہے، جن کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان جو اپنی زندگی پٹیوں پر برباد کر رہے ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو لہو لعب کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو موبائل میں اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، کاش ان نوجوانوں تک ہماری باتیں پہنچ جائیں اور دین پر وہ عمل کرنے والے بن جائیں، دین کا جذبہ اور شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ہے اس پروگرام کی غرض و غایت جو ہر ہفتے سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں منعقد کیا جاتا ہے. بہرحال آج انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے، چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی میں زیادہ دیر تک پروگرام کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے. عمل اگر کیا جائے تو ایک بات ہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، نیت ہی نہ ہو، تو رات بھر تقریر کی جائے تو سب بیکار ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ نیت، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اصل چیز عمل ہے، سننا سنانا تو ہوتے رہتا ہے. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ حضرات کے سامنے پیش کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بتلا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد حضرت انسان کا بیان کیا کہ اے انسان، میں نے دنیا کے اندر تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر، دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر، آسمان کے نیچے رہ کر، زمین کے اوپر رہ کر، اپنے محلات، اپنے باغات، اپنے کھیت کھلیان میں رہ کر خبردار مجھے مت بھول جانا، مجھے مت بھول جانا. میں نے اس لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے. میں جس طریقے سے تجھے کہوں گا زندگی گزارنے کے لیے، اس طریقے سے تو زندگی گزارنا تو تیری زندگی ساری کی ساری عبادت شمار ہو جائے گی. اگر تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے اپنا کاروبار کرے گا، اپنی تجارتیں کرے گا، تو تیرا تجارت کرنا یہ عبادت بن جائے گا. اگر تو مزدوری کرے گا میرے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے، تو تیرا مزدوری کرنا یہ عبادت بن جائے گا. اگر کسی سے تو معاملات کرے گا اور معاملات میرے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے کرے گا، تو تیرے معاملات کرنا یہ عبادت بن جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن نے مقصد بیان کر دیا انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا.
अल्लाह फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि हम सिर्फ नमाजों में लगे। इबादत हम सोए, शरीयत के एतबार से हमारा सोना भी इबादत। हम चले रास्ते में अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए तो हमारा चलना ये इबादत। हम कारोबार करें बताए हुए, शरीयत के बताए हुए वसूल व ज़ाब्ते के एतबार से तो हमारा कारोबार करना ये इबादत। इस्लाम के अहम रुकन है ये नमाज। नमाज तो अहम तरीन इबादत है ही, उसके अलावा इंसान अपनी पूरी जिंदगी को इबादत बना सकता है। तो मेरे अजीज नौजवानों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है ताकि हम उस रब को पहचाने। अल्लाह ने कितने करम का मामला हमारे साथ किया है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह इंसान को इस बात की दावत दी है कि ऐ इंसान तू अपने वजूद पर गौर कर। अपने वजूद पर गौर कर लेगा तो तू मुझे पालेगा, मेरी मार्फत तुझे हासिल हो जाएगी। आखिर वो कौन है जो 3 अंधेरियों के अंदर तेरी तरबियत किया? कौन है 3 अंधेरियों के अंदर तेरे हाथ को बनाया, तेरे पैरों को बनाया, तेरी जबान को बनाया, तेरे नाक को बनाया, तेरे कान को बनाया, तेरे दिमाग को बनाया, तेरे दिल को बनाया, तेरे जिस्म के हर हर उज़्व और हर हर रोए को बनाया? वो कौन है? 3 अंधेरियों के अंदर तेरा वजूद बना रहा है। तेरी माँ अगर रोटी खा रही है, उस रोटी की बरकत से तेरे हाथ बन रही है। तेरी माँ अगर फल फ्रूट खा रही है, उसकी वजह से तेरे नक्शे बन रहे हैं। तेरी माँ अगर कोई काम कर रही है, उधर तेरी माँ दुनिया के कारोबार के अंदर मशगूल है, दुनिया के काम में मशगूल है, खाना पका रही है और दीगर काम घरेलू कर रही है, और इधर मेरी कुदरत काम कर रही है कि मैं तेरा नक्शा बना रहा हूँ, तेरी नाक बना रहा हूँ, तेरा हाथ बना रहा हूँ, तेरा पैर बना रहा हूँ, तेरे जिस्म का एक एक उज़्व सही सालिम बना रहा हूँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, याद रखना, अब जब मैंने तेरा वजूद बना दिया, तुझे दुनिया के अंदर भेज दिया, और इसलिए भेजा ताकि इस बनाने वाले के एहसान को तस्लीम कर, उस बनाने वाले को मान, उस बनाने वाले की इबादत और परस्तिश कर। लेकिन दुनिया के अंदर तू पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो शैतान तुझे भटका दे, शैतान मेरे रास्ते से तुझे हटा दे। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, याद रखना, कहीं धोखेबाज शैतान तुझे रब्बे करीम से धोखे में ना डाल दे। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। वही वो जात है कि ऐ इंसान, जिसने तुझे सही सालिम बनाया, तेरा वजूद सही सालिम बनाया। अगर अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, जो है हाथ को जो है यहां लगाने वाले सर पर लगा देता तो कितना भद्दा और जो है बदशक्ल इंसान नजर आता। लेकिन अल्लाह ने अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, अल्लाह कह रहा है वही वो जात है कि ऐ इंसान, जिसने तुझे बनाया और किस तरह सही सालिम बनाया। तेरे आज़ा को जहां रखना खूबसूरती की अलामत थी, उन मकामात पर तेरे आज़ा को हमने सजा दिया। और दुनिया की सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हमने किसी को बनाया है तो हजरत इंसान को बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कुरान ऐलान कर रहा है कि हमने हजरत इंसान को बेहतरीन, हसीन, खूबसूरत बनाया है, हसीन सांचे में ढाला है। तो जो रब हमारे साथ इतने करम का मामला,
कैसे ही हालात आ जाएं, हमारा रब कभी हमें भूखा नहीं सुलाता। और हम उस रब को भूल करके जिंदगी बसर करें तो कितनी बड़ी ये नाशुक्री है, कितनी बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह फरमाता, मैंने खुतबे के अंदर हदीस पढ़ी थी, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने मखलूक को क्यों पैदा किया, मैं तो एक पोशीदा खजाने के मानिंद था। अल्लाह फरमा रहा, मैं एक पोशीदा खजाने के मानिंद था, मैं चाहा कि मैं पहचाना जाऊं मखलूकात के दरमियान, तो मैंने मखलूकात को वजूद बख्शा। कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं एक पोशीदा खजाने के मानिंद था। फ़अरदतु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, चुनांचे मैं चाहा कि पहचाना जाऊं लोगों के बीच, तो मैंने मखलूक को वजूद बख्शा, मखलूक को बना दिया ताकि मखलूक अपने खालिक को पहचाने। आज दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ कोई एहसान का मुआमिला कर देता है, कोई एहसान का मुआमिला कर देता है, तो इंसान उस बंदे के एहसान के बोझ के नीचे दब जाता है। कोई किसी की जरूरत के वक्त खड़ा हो जाए और उसकी जरूरत के वक्त काम में आ जाए, तो इंसान उसके इस एहसान के नीचे दब जाता है कि अरे मैं उसको कैसे भूल सकता हूं, मैं बड़ा परेशान था, उसने मेरे साथ एहसान का मामला किया, मेरी मदद की। ऐ इंसान, गौर करने का मकाम है कि हम दुनिया के एक इंसान के एहसान को भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। उस रब्बे कायनात ने हमारे साथ कितने एहसान का मामला किया है, हमारे जिस्म के हर हर उज़्व को सही सालिम बनाया, हमें बोलने की सलाहियत से नवाजा, हमें देखने की कुव्वत अता की, हमें सुनने की सलाहियत अता की, हमें चलने की कुव्वत अता की। ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी, ये कितना बड़ा एहसान किया, और हम उस खालिक और मालिक को भूल करके जिंदगी गुजारे, ये कितनी बड़ी नादानी की बात है। तो इन प्रोग्राम के करने का मकसद यही होता है कि अल्लाह को हम पहचानने वाले बन जाएं। देखिए, जिंदगी हर हाल में गुजर जाएगी। अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारेंगे तो भी गुजर जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारेंगे तो भी ये हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह ने इंसान के दुनिया में वजूद में आने से पहले ही लिख दिया था कि इस बंदे को इतनी उम्र मिलेगी, इतनी जिंदगी मिलेगी, इतना रिस्क मिलेगा, इतनी ये चीजें मिलेंगी, सब कुछ लिख दिया था अल्लाह ने। अब हम अगर फरमा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो आखिरत में हमें इनाम और इकराम मिलेगा, और अगर हम उसके खिलाफ जिंदगी बसर करेंगे तो आखिरत में सजा मिलेगी। इसी मकसद के तहत अल्लाह ने हजरत इंसान को दुनिया के अंदर भेजा। कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात की तख्लीक अल्लाह ने इसलिए की है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह फरमाता ताकि मेरी ये इबादत करने वाले बन जाएं, इसलिए मैंने इंसान और जिन्नात की तख्लीक की है। ये है दुनिया में भेजने का मकसद। और जो चीज अपने मकसद से हट जाए, जो चीज अपने मकसद से हट जाए, तो जाहिर बात है उस चीज की हमारी निगाहों में भी कोई कदर नहीं रहती। कोई चीज अपने मकसद से हट जाए, अपने काम से हट जाए, तो उसकी हमारी निगाहों में, हमारी नजरों में भी कोई वक़ात और कोई हैसियत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर ये लाइट चल रही है, लाइट चलना बंद हो जाए, इसका मकसद क्या है? लाइट लगाने का। लाइट लगाने का मकसद ये है कि हमें रोशनी हासिल हो, हमें रोशनी हासिल हो, ये है लाइट लगाने का मकसद। लेकिन ये बल्ब रोशनी देना बंद कर दे तो क्या हम उसको सजा करके अपने कमरे में रखेंगे? मकसद तो ये था कि हम इससे रोशनी हासिल करेंगे,
ہمارے گھر کا اندھیرا اس سے دور ہوگا، لیکن وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، بلب خراب ہو گیا، جس مقصد کے تحت ہم نے لگایا تو وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اس بلب کو ہم سجا کر کے کمروں میں رکھیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جو مقصد ہٹ گیا، جو بلب اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اس کا ٹھکانہ کوڑے دان ہے، اس کو نکالیں گے اور اس کو کوڑے دان میں ڈال دیں گے کہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، یہ بیکار ہو گیا۔ اللہ نے حضرت انسان کو مقصد عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور انسان جب اس مقصد عبادت سے ہٹ جائے گا تو اللہ نے بھی ایک کوڑے دان بنا کر کے رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ نے بھی ایک کوڑے دان بنا کر کے رکھا ہے جس کا نام جہنم ہے، اس کوڑے دان کے اندر ڈال دے گا اور کہے گا میں نے تجھے عبادت کے مقصد کے تحت پیدا کیا تھا کہ تو دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد مجھے پہچانے گا، دنیا میں جانے کے بعد میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد میری خالقیت کو تسلیم کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد میری حقانیت کو مانے گا، لیکن تو اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اب تیرا ٹھکانہ اس کوڑے دان میں ہے۔ تو ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، ہم مقصد کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ مقصد خداوندی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاست کریں، اللہ کو اپنا خالق و مالک تسلیم کریں، اس کے حکموں کو اعتبار سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر حضرت انسان کو بھیجا ہے، یہ ہے مقصد۔ اور بے مقصد زندگی گزاریں گے تو اس کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، میرے دوستوں، ہم دنیا کے اندر با مقصد زندگی گزارنے والے بن جائیں تاکہ یہاں بھی کامیابی ہو اور وہاں بھی کامیابی ہو، یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ اور اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اپنے رب کو بھول کر کے زندگی گزاریں گے، تو یہاں بھی ناکامی، یہاں بھی ذلت و رسوائی، اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا، جو با مقصد زندگی گزار کر کے آئیں گے، میرے حکموں پر چل کر کے آئیں گے، میری باتوں پر عمل کر کے آئیں گے، میرے فرمودات کی روشنی میں اپنی دنیاوی زندگی کو بسر کر کے آئیں گے، تو ہم حشر کے میدان ہی میں ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں عطا کر دیں گے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا کر دیں گے، سیدھے ہاتھ میں عطا کر دیں گے، اور پھر وہ مارے خوشی کے اچھل رہا ہوگا، مارے خوشی کے کود رہا ہوگا، لوگوں سے کہہ رہا ہوگا ارے ذرا آؤ تو صحیح، یہ دیکھیے میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا، میرے رب نے میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں، میرے داہنے ہاتھ میں عطا کر دیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ خوشی خوشی آس پاس لوگوں سے کہے گا ارے میرا نامہ اعمال تو پڑھو، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے کہے گا ارے میرا نامہ اعمال تو پڑھو، دیکھیے میرے رب نے جو ہے مجھے کامیاب کر دیا۔ مارے خوشی کے ٹہل رہا ہوگا، مارے خوشی کے دوڑ رہا ہوگا، مارے خوشی کے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہوگا کہ میرا نامہ اعمال تو دیکھو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا رے ذرا آؤ تو صحیح، یہ میرا نام اعمال پڑھو۔ فَيَقُول، وہ کہتا پھرے گا لوگوں سے، اپنے دوست و احباب سے کہہ رہا ہوگا، ملنے جلنے والوں سے کہہ رہا ہوگا، اعزاء اقربا رشتے داروں سے کہہ رہا ہوگا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ارے ذرا آؤ یہ میرا نام اعمال پڑھ کر کے سناؤ، میرا نام اعمال تو دیکھو کہ میرے رب نے مجھے کیسا کامیاب کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے رب کامیاب کرے گا
وہ मारे खुशी के उछल रहा होगा, सिर्फ अपना नाम अभी जन्नत में नहीं पहुंचा होगा। जन्नत में नामा आमाल हश्र के मैदान में दे दिया जाएगा। जो बामकसद जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्मों की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे, उनका नाम आमाल उनके दाहिने हाथ में मिल जाएगा। मारे खुशी के उछल रहे होंगे, लोगों को दिखा रहे होंगे, पढ़ो पढ़ो मेरा नाम आमाल पढ़ो। मैं तो दुनिया के अंदर था, मेरा ये यकीन था, मेरा ये अकीदा था कि मुझे रब के हुजूर जाना है, रब के सामने खड़ा होना है और रब के सामने हिसाब व किताब देना है। ये यकीन था, ये अकीदा था। इस अकीदे को सामने रख करके मैंने बामकसद जिंदगी गुजारी है। अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अगर कभी गुनाह हो जाते थे तो फौरन रब से तौबा करता था, रब के सामने माफी मांगता था। मेरा रब इतना करीम कि फौरन मेरे सारे खताओं को माफ कर देता था। अन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि मैंने ये गुमान कर लिया था, ये यकीन था, मेरा ये अकीदा था कि मुझे रब के सामने हाजिर होना है और अपना हिसाब व किताब रब के सामने पेश करना है। हिसाब व किताब उसके बाद अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि मेरे बंदे अब जा, हंसी खुशी तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। फहुव फी ईशतिर राज़िया, जा हंसी खुशी ऐश आराम की जिंदगी अब बसर कर दुनिया की। अब जन्नत के अंदर ऐश आराम की जिंदगी तू बसर कर। दुनिया के अंदर तूने बड़ी तकलीफ उठाई। सर्दी के मौसम में जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहा करता था कि आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, मेरे बंदे तू मेरे मुनादी की आवाज सुनकर लब्बैक कहता था और ये नहीं देखता था कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, बारिश आ रही है या तूफान आ रहा है। तो उठता था अपने नर्म नर्म बिस्तरों से और उठते हुए अल्लाह की हम्दो सना करता था और मेरे हुक्म को, मेरे फरीज़े को अदा करने के लिए तेरे कदम मस्जिद की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते थे। तूने दुनिया के अंदर आराम और राहत को छोड़ा, अब तुझे यहाँ हमेशा हमेश की आराम और राहत मिल रही है। फहुव फी ईशतिर राज़िया, वो ऐशो आराम में होगा। अल्लाह कहेगा जन्नत में मेरे बंदे पहुंच जा, फी जन्नतिन आलिया, बुलंद वाला जन्नत में पहुंच जा। कुतूफुहा दानिया, वो ऐसी जन्नत कि जिसके मेवे झुके हुए होंगे, इतने मेवे होंगे, इतने फल फ्रूट होंगे, इंसान जैसे चाहेगा अगर सोचेगा कि ये फल आ जाए, फौरन वो फल उसके सामने आ जाएगा। जिस तरीके से चाहेगा वहां उसको इस्तेमाल करेगा, उसको खाएगा। कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो खाओ पियो अपने उन आमाल के बदले में जो तुमने दुनिया के अंदर किया था, दुनिया के अंदर किया था, उन आमाल के बदले में अब खाओ पियो। तो हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है मेरे नौजवानों? बामकसद जिंदगी गुजारनी है। इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। इस तरीके से जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया के अंदर अगर थोड़ी बहुत मुशक्कत और परेशानी भी आ जाए तो इंसान खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि आखिरत पर उसकी निगाह जमील होगी। एक हदीस पाक के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिज्नु लिल मुमिनीन व जन्नतु लिल काफिरीन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाने के मानिंद है और नाफरमानों के लिए ये जन्नत के मानिंद है। अगर नाफरमानों को दुनिया के ऐश आराम की सारी चीजें मिल रही हैं तो हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नाफरमानों के लिए ये दुनिया क्या है? जन्नत है। और ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए दुनिया क्या है? कैद खाने के मानिंद है।
قید خانے میں اگر کوئی پہنچ جائے، جیل میں پہنچ جائے، کہے کہ انڈا لاؤ یہاں کھانے کے لیے، تو کیا ملے گا؟ ڈنڈا ملے گا۔ کیوں؟ وہاں منچاہی زندگی انسان نہیں گزار سکتا، منچاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو دنیا کے اندر ہم منچاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ منچاہی زندگی ہمیں جنت میں گزارنے کو ملے گی۔ اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، دنیا کے اندر اس کے دل کے اندر یہ خوف، یہ ڈر بس گیا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے تو اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے، ہم دنیا کے اندر سٹے لگائیں گے، جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے، بے حیائی کریں گے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ انسان کے دل کے اندر خوف اور تصور بیٹھ گیا؟ تو رب فرما رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، جنت میں اللہ اس کو داخل کرے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو کتنا آسان، یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دنیا کی دی ہے، اس کو ہم بے مقصد نہ گزارے بلکہ با مقصد زندگی گزارے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ ہے آج کا وہ پیغام جو آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہم بھول کر زندگی گزارنے والے نہ بنے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے اللہ کو پہچانے۔ اسی طریقے سے حالات جو چل رہے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، ایسے حالات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنے سارے نوجوانوں سے، دوستوں سے اور سارے ہر ایک ایمان والے سے، ہر ایک مسلمان بھائی سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن تو پورے ہفتے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے اس بندے کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے جس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے، فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، فتنہ دجال کا آپ نے تذکرہ کیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اتنا صحابہ ایسا خوف زدہ ہوئے، سجل مسلمون دھاڑے مار کر رونے لگے فتنہ دجال کو سن کر کے۔ صحابہ جو دنیا کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد سب سے مقدس جماعت انسانیت کی، فتنہ دجال کا تذکرہ سن کر کے دھاڑے مار کر کے رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قریب کے باغ کی کھجوروں میں دجال چھپا ہوا ہے۔ اس کا فتنہ، اس فتنے کا مقابلہ ہم جو ابھی زندگی ہے اس زندگی کے اعتبار سے نہیں کر سکتے میرے دوستوں۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کو ہر قسم کے فتنوں سے، خصوصاً فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ بڑا سخت فتنہ ہوگا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے اور بڑے بڑے فتنے ابھی رونما ہوں گے، لیکن فتنہ دجال سے بڑا نہ کوئی فتنہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ فتنہ دجال ایسا زبردست فتنہ ہوگا، اپنے آپ کو وہ خدا کہے گا، اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، ایسا بھی نہیں کہ وہ خامخواہ کہلوائے گا۔
बादल को हुक्म देगा बारिश बरस जा, फौरन बादल बारिश बरसाने लगेगा। एक जमीन सरसब्ज शादाब हरी भरी लहलहाती खेतियां लहलहाते बागात होंगे। हुक्म करेगा सूख जा, बंजर हो जा जमीन, सारी की सारी हरियालियां उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सोने के पहाड़, रोटियों का पहाड़ उसके साथ चल रहा होगा। इतना अजीम फितना होगा। लोगों से कहेगा, उसके साथ जन्नत भी चल रही होगी, जहन्नम भी चल रही होगी। लोगों से कहेगा मुझे खुदा मान लो, ये देखिए जन्नत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें तुम्हें दाखिल करूंगा। और एक तरफ उसकी जहन्नम चल रही होगी, आग के शोले भड़क रहे होंगे। कहेगा जो मुझे नहीं मानेगा उसको जहन्नम में डाल दूंगा। एक रिवायत में यह बयान किया गया है, अगर तुम्हारा दज्जाल से सामना हो जाए और ये कहे कि तुम मेरी खुदाई को तस्लीम कर लो, तो उसकी खुदाई को कभी तस्लीम मत करना। वो तुम्हें धमकी देगा जहन्नम में डालने का, तुम आंख बंद करके उसकी जहन्नम में छलांग लगा देना। आंख बंद करके उसकी जहन्नम में छलांग लगा देना। पर हकीकत जो उसकी जहन्नम होगी वो जन्नत होगी, वो जन्नत होगी। आखिरत में अल्लाह निजात दे देगा। इतना अजीम फितना होगा फितने दज्जाल। उस फितने से मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। दुनिया का सारा निजाम अपनी मुट्ठी में ले लेगा। हालात बन रहे हैं। इंसान को कहेगा खड़ा रहे तो खड़ा रहेगा, इंसान को कहेगा बैठ जा बैठ जाएगा। एक इंसान को कत्ल करेगा, मुझे खुदा मान, वो कहेगा मैं नहीं मानता खुदा, तू काना दज्जाल है। उसको कत्ल करेगा, दो टुकड़े कर देगा, फिर दोबारा उसको जिंदा कर देगा, दोबारा उसको जिंदा कर देगा। कहेगा अब तो मान मुझे खुदा। वो कहेगा अब तो मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि तू ही काना दज्जाल है, मैं तेरी खुदाई को तस्लीम नहीं करता। हदीस में बयान किया गया जब फितने दज्जाल रोनुमा होगा, लोग अपने ईमान को बचाने की खातिर गारों में छुप जाएंगे, जंगलों में छुप जाएंगे, पत्ते खा खा करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और ऐसे हालात भी आएंगे कि उनके पास पत्ते भी नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, उनकी भूख मिटेगी, उनकी प्यास बुझेगी। ऐसे उस फितने का मुकाबला, वो फितना सर पर आते जा रहा है। और हमारे नौजवान इंटरनेट पर लगे हुए, हमारे नौजवान मोबाइलों में मस्त, हमारे नौजवान पट्टियों को छोड़कर मस्जिदों में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, ऐसी जिंदगी गुजारने से क्या फायदा जो बेमकसद जिंदगी हो, जिसका कोई हासिल नहीं, कोई नतीजा नहीं। आज हमारा और इसी बेदीनी का नतीजा है कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में इख्तिलाफ ना हो, जिस घर में लड़ाई ना हो, जिस घर में बेबरकती ना हो, जिस घर में बीमारियां ना हो, जिस घर में परेशानियां ना हो। हर घर के अंदर इल्ला माशाअल्लाह, हर घर के अंदर यही चीजें हैं। ये इन्हीं बदआमालियों का, हमारे यही करतूतों का ये नतीजा है, ये नतीजा है। पहले की हमारी माएं और बहनें थी, कैसा पर्दों का वो एहतिमाम करती थी, पर्दों का एहतिमाम करती थी। पर्दों का अगर कहीं आना जाना होता है, पर्दों के साथ निकलती थी, आती जाती थी। लेकिन आज हमारे ही घरों की हमारी बहू बेटियां, हमारी माएं और बहनें कैसी बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। और जब बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, तो क्या उनकी गोद से फरमा बरदार बेटे पैदा होंगे? उनकी गोद से जुनैद बगदादी जैसा इंसान पैदा होगा? उनकी गोद से ख्वाजा अजमेरी जैसा वलीए कामिल पैदा होगा? उनकी गोद से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा इंसान पैदा होगा? उनकी गोद से औलियाए किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े रिज़ान जन्म लेंगे? नहीं, उनकी गोद से तो मोहल्ले को परेशान करने वाले अफराद जन्म लेंगे। उनकी गोद से मोहल्ले के अंदर डिब्बे बचा करके पूरे मोहल्ले की नींद को हराम करने वाले अफराद पैदा होंगे। उनके गोद से मोहल्ले की बहू बेटियों पर हवस की निगाहें डालने वाले अफराद पैदा होंगे। यह है उस बेपर्दगी का नतीजा। हमारी माएं और बहनें जब नेक बनी हैं तो उनके बतन से नेक अफराद जन्म लिए हैं, और जब हमारी माएं और बहनें बुरी बनी हैं
गाली गलौज उनके अंदर आई, बुराइयां उनके अंदर आई, बेपर्दगी उनके अंदर आई, गीबत उनके अंदर आई, शौहरों की नाशुक्री उनके अंदर आई, एक दूसरे पर लान तान करने का जज्बा उनके अंदर आ गया, तो फिर वैसे औलाद भी निकल रही है। फिर क्या होता है, यही औलाद फिर वालिदैन को धक्के मार करके घरों से निकालती है। बचपने में बड़े लाड प्यार से हमने जिस औलाद की तरबियत की, अपने आराम को आराम नहीं समझा अपनी औलाद की खातिर, अपनी परेशानी को परेशानी नहीं समझा अपनी औलाद की खातिर, सारी जवानी हमने अपनी औलाद की जिंदगी को बनाने में लगा दी, सर्फ कर दी, सारी मेहनतें अपनी औलाद के लिए हमने की, उसके लिए मकानात बना दिया, उसके लिए बैंक बैलेंस कर दिया, उसके लिए कारोबार का इंतजाम कर दिया कि मेरी औलाद हमारे कारोबार को तरक्की तक पहुंचाएगी। लेकिन वही औलाद चूंकि दीन के मिजाज से हट करके उसकी तरबियत की गई है, वही औलाद वालिदैन को एक एक रुपए खर्च देने के लिए तरसा रही है। वही औलाद वालिदैन को गालियां बक रही है, वही औलाद वालिदैन को सता रही है, तकलीफें पहुंचा रही है। वही उसी औलाद की जब शादी हो जाती है तो बहू के साथ दूसरे मोहल्लों में चला जाता है रहने के लिए किराए के मकान पर, वालिदैन को मुड़ करके नहीं देखता। वालिदैन सिसक सिसक करके जिंदगी गुजार रहे हैं, बीमार हैं, तड़प रहे हैं। वालिदैन की मिजाज पुरसी करने के लिए भी वो औलाद हाजिर नहीं होती है। ये सब किसका नतीजा है? सही तरबियत ना करने का ये नतीजा है, सही तरबियत ना करने का ये अंजाम है जो आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर यही हालत रही, याद रखिए मेरे नौजवानों, आज तुम जवानी के नशे में अपने वालिदैन को छिड़क रहे हो, तुम्हारी भी औलाद अभी जवान हो रही है। जब तुम उस मकाम पर पहुंचोगे जहां आज तुम्हारे वालिदैन हैं, तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हो। चूंकि ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसलिए मुख्तलिफ बातें इसमें आती हैं, कोई एक खास मौजू नहीं होता कि इस्लाह के हमारे मुआशरे की ये सब कमियां हैं, ये सब हमारे मुआशरे में हो रहा है। पहले सुबह के वक्त अगर कोई मोहल्ले में निकलता था तो हर घर से माओ बहनों बेटियों की कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी, कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी। और आज ऐसा लगता है कि पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान बना हुआ है। फजर के वक्त अगर आवाज भी आएगी तो गाने की आवाज आती है, आवाज भी आएगी तो गाने की आवाज आएगी। वरना सुबह के वक्त अगर मुस्लिम मोहल्लों में चक्कर लगा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये सब आबादी जो है मकानात के लोग कहीं हिजरत कर गए हैं, छोड़कर मकानात, कहीं से चूनो चिरा की आवाज तक नहीं आती। ऐसा सन्नाटा, ऐसी नुहूसत मुस्लिम मोहल्लों पर तारी होती है। अगर सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों घर में दो चार बूढ़े बेचारे कांपते कांपते वो मस्जिद तक पहुंच जाते हैं, मस्जिद तक पहुंच जाते हैं। सैकड़ों घर में सैकड़ों नौजवान अफराद हैं जिनके ऊपर नमाज पंज वक्ता फर्ज है, लेकिन मोहल्ले के सैकड़ों घरों में से मस्जिद के नमाजियों को शुमार किया जाए, एक सफ डेढ़ सफ निकलेगी, और वो भी नौजवानों की तादाद नहीं होती है। वही बूढ़े जिनको बेचारे नींद नहीं आती, रातों में खांसते रहते हैं बैठ करके। अब सोचे अजान हो गई, चलो धीरे धीरे चलते हैं मस्जिद, चलो धीरे धीरे मस्जिद चलते हैं। बेचारे हाँफते कांपते आ जाते हैं मस्जिद में। वरना हमारा नौजवान वो क्यों आने लगा मस्जिद में? उसने तो 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल चलाया है, फेसबुक पर अपने दोस्त से जो है गुफ्तो सुनीद में लगा रहा, टेलीग्राम पर लगा रहा, व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से मैसेज करता हुआ नजर आया। 2-2:30 बजे तक इतना बड़ा उसने मुजाहिदा कर लिया। अब कैसे वो 5 बजे
उड़कर जो है फजर की नमाज अदा करने के लिए आएगा। अगर कोई जगा दे उसको कि बेटे, अम्मा जगा दे कि बेटी अजान हो गई, अरे पड़ी रहो चुपचाप, चिल्लाती रहती हो, डांटे गए। तो ये है जिंदगी आज हमारे नौजवानों की। मेरे दोस्तों, जो मैं बतला रहा हूं ये हकीकत है, याद रखिए। हमारी बातें तो कड़वी लग रही होंगी आपको, लेकिन हकीकत है। आज हमारे मोहल्ले के अंदर यही हो रहा है। सैकड़ों घर हैं, अगर मौज़िन साहब से पूछ लिया जाए कि फजर की नमाज में कितने नमाजी आते हैं, नौजवान कितने होते हैं, बूढ़े कितने होते हैं, सीने पे हाथ रख के बतलाइए मेरे नौजवानों। आपकी मस्जिद का मौज़िन यही जवाब देगा। चंद लोग आते हैं, मौलाना क्या किया जाए, क्या किया जाए। जिस कौम पर पांचों वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है और उन पांचों वक्त की नमाजों में फज्र की नमाज को सबसे अहम तरीन नमाज करार दिया है, रिज़्क की बरकत का वादा उस नमाज के अंदर अल्लाह ने रखी है। जब नमाज छोड़ करके जिंदगी गुजारेगा तो कहां से हमारे घरों में रौनक आएगी, कहां से हमारे मोहल्लों में रौनक आएगी। ये तो नहुसतारी होनी और उसी का ये नतीजा है, उसी का नतीजा है। हम लोग ये समझते हैं कि नमाज सिर्फ जो है हाफिज मौलवी मुल्ले लोग पढ़ लेंगे, बाकी जो है वैसे लोग हैं उनके ऊपर नमाज नहीं है। यही तो सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ जो है मुअज्जिन जो कह रहा है हय्या अला सलाह, तो मौलवियों को कह रहा, हाफिजों कह रहा, मुल्लाओं को कह रहा कि आ जाओ नमाज के लिए। हम तो कारखानेदार हैं, हम तो गोदाम वाले हैं, हम हट्टे कट्टे नौजवान हैं, हम क्यों कर जाएं? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुअज्जिन सबको दावत दे रहा है, चाहे बूढ़े हो या नौजवान हो, जितने भी बालिग मर्द हैं सबको मस्जिद में आने की दावत दे रहा है और सबको अपनी आवाज के जरिए से पूरे मोहल्ले के मुसलमानों को बेदार कर रहा है कि घर की माएं बहनें अपने घरों के अंदर नमाज अदा करने के लिए जाग जाएं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फज्र की अजान में हर मुअज्जिन हर मस्जिद से यही पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हर मस्जिद से यही आवाज फज्र की नमाज में गूंजती है, क्योंकि वो नींद के गलबे का वक्त होता है। मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे मोहल्ले के लोगों, चाहे तुम कारखानेदार हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम गोदाम वाले हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम स्टॉक वाले हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम मजदूर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सारे के सारे इंसानों के लिए ये आवाज है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज तुम्हारी नींद से हजार दर्जा बेहतर है। नींद को कुर्बान करो, तुम्हारे स्टॉक काम नहीं आएंगे, तुम्हारे कारखाने काम नहीं आएंगे, तुम्हारे गोदाम हश्र के मैदान में काम नहीं आएंगे। तुम ये सोचते हो कि हम जैसे दुनिया के अंदर जो है एक दूसरे को धोखा दे देकर बच जाते हैं और कामयाब दुनिया की जिंदगी में हो जाते हैं, आखिरत में धोखा नहीं चलेगा। वहां रब की अदालत होगी, रब की अदालत में पेशी होगी, वहां किसी का कोई सिफारशी और कोई हिमायती नहीं होगा, वहां हर एक को अपने किए का आमाल का हिसाब देना होगा। तो ये सदा, ये आवाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज ये नींद से बेहतर है, ये नींद से बेहतर है। ये सिर्फ मोहल्ले के सिर्फ चंद बूढ़ों के लिए आवाज नहीं है, ये मोहल्ले के सिर्फ हाफिज़े कुरान या जो दीन से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हमारे जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये नहीं है, मोहल्ले के हर फर्द के लिए ये आवाज है। इस आवाज की कदर करेंगे भाई। अब मुअज्जिन सुबह कहेगा सलातु खैरुम मिनन नौम, तो आप उस आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मेरे नौजवानों, अब कम से देखिए बेदार किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हमारा काम तो समझाना है, हम समझा रहे हैं और इसमें आपको समझाने में हमारा कोई फायदा नहीं है, इल्ला या हमें तो अल्लाह ताला अजर देगा।
दुनियावी कोई मकसद, कोई गरज हमारी आपसे बिल्कुल नहीं है। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि ये बेमकसद जो जिंदगी गुजर रही है, ये जिंदगी बेमकसद नहीं बल्कि बामकसद जिंदगी बन जाए। हालात को समझो, हालात की धारों को देखो, हालात का रुख किस तरफ जा रहा है, जरा उस रुख पर नजर डालो, फिर अपने ईमान को टटोलो कि ये हालात की आंधियां अगर हमारी तरफ मुड़ेंगी तो क्या इस कमजोर ईमान के साथ हमारा कमजोर ईमान का ये जो है टिमटिमाता हुआ चिराग क्या सख्त आंधियों और सख्त तूफान का मुकाबला कर सकेगा? मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, समझने की बात है। इशारे किनारे में बहुत सारी बातें आपको बताई। सुबह उठ करके जल्दी उठने की आदत डालो। सफर से कभी कभी आना होता है, गैरों के मोहल्ले में रास्ते में सफर के दौरान 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, आप लोग भी जो सफर करते हैं जानते हैं, गैरों की बस्तियां पड़ती हैं। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े रोड पर टहलते हुए नजर आते हैं, दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। और जब अपनी बस्तियां आती हैं तो वहां सिर्फ कुत्ते टहलते हुए नजर आते हैं। अपनी बस्तियों में कुत्ते टहलते हुए फजर 3 बजे, 3:30, 4, 5 बजे नजर आते हैं गलियों में, कूचों में। और गैरों के मोहल्ले में बच्चे, तो क्या बच्चे, मर्द, औरत, बूढ़े सब वर्जिश कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जो है अपनी सेहत बना रहे हैं। ये काम तो हमारा था, ये काम तो हमारा था। हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि सुबह जल्दी, रात में जल्दी सोने की आदत डालो और सुबह जल्दी बेदार होने की आदत डालो। ये काम सुबह के वक्त एक हवा चलती है जिसको नसीम सुबह कहा जाता है। वो हवा जिस आदमी को लग जाए तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान निजात पा जाता है। उस हवा के अंदर अल्लाह ने यह खासियत रखी है, उसका नाम नसीम सुबह, सुबह की हवा, सुबह की हवा है। जाहिर बात है आज गैर उससे फायदा उठा रहे हैं। नसीम सुबह उनको मिल रही है, सुबह की हवा उनको मिल रही है। हमारे नौजवानों की सुबह तो होती है जब सूरज सर पर आ जाता है, 9-10 बजे हमारे नौजवानों की सुबह होती है। ये गफलत अगर रहेगी तो ना सेहत बनेगी और ना सोचने समझने की सलाहियत रहेगी। मेरे नौजवानों, सुबह उठने की जल्दी आदत डालो। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों, चूंकि हमारा ये मोहल्लावारी प्रोग्राम होता है, तो अपने नौजवानों से कहता हूँ, मेरे नौजवानों उठो, दौड़ लगाया करो, सुबह वर्जिश करो, वर्जिश करो, ये सेहत बनाने की फिक्र करो, ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करो जिससे ताकत और कुव्वत आए। ये काम में आने वाली चीजें हैं। हालात को समझिए, मैं कहां से बात कर रहा हूँ, गैर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें सामने आ गई, जो है कहने के लिए तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी बात ही हमारे और आपके लिए काफी। अगर इस पर अमल कर लिया जाए, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।